Hello everyone. So today I'm here with you all on my YouTube channel with a new video after a long time for class 10 physics, that is human eye and colorful world. Right? So as we all know that there is a delay in the examination to be conducted by the CBSE. So class 10 students are getting more time to prepare well, right, during this pandemic time. So now I'm here to help you out for the chapter 11 from NCERT science book. In this chapter, as I have already shared with you that so many lectures, so many topics are deducted from this. So defects of vision, structure of human eye, power of accommodation, these all has been deducted. So the topics which are left that today I am going to discuss with you, that is dispersion of light. So सबसे पहले आपको पता होना चाहिए what is light. Light is just a form of energy which produces in us the sensation of vision, जिस वजह से हम देख सकते हैं, right? So it's just a form of energy. Dispersion is a very common phenomenon which we have studied in junior classes also. I think in class 6 and 7 also you must have studied about dispersion. बारिश के बाद हम एक बहुत अच्छी रेनबो देखते हैं, right? And we know that physics means study of nature and its phenomena. So whatever is happening in nature, that is related to physics. The answer you will get why it's happening, the answer will be in physics. So same way, dispersion of light, answer is in physics. We know that the splitting of white light into 7 different colors, right, is known as dispersion of light. So why does this dispersion of light? In junior classes we have studied the definition, we have learned the definition. So what is the cause behind it? We know that the different colors deviate at different angles, due to which they form the dispersion, and then they form the 7 colors. हर कलर है, हर कलर का अपना अपना एंगल ऑफ डेविएशन होगा. एंगल ऑफ डेविएशन होता है कि दे आर मूविंग अवे फ्रॉम देयर पाथ, चेंजिंग इन पाथ. डेविएट होना, डेविएट होते अलग अलग एंगल से. ओके, उसका कुछ फिनोमेना इस तरीके का बनता है कि प्रिज्म है, राइट. व्हेनेवर द व्हाइट लाइट इज पासिंग थ्रू द प्रिज्म, सो प्रिज्म आपने देखा होगा, व्हाइट लाइट striking the prism, then after striking it will split into 7 different colors, right? V, I, B, G, Y, O, Virgo. This is the spectrum and the phenomena is dispersion, right? Red color scattered the least. I would like to tell you why red color scattered the least, because wavelength is, if I write like this, in the upside, wavelength increases, right, and frequency decreases. So this is the reason why there are some phenomena which I will discuss later, that why danger signals are red in color, right? So that answer I will give you later on in this chapter. So this is white light, dispersion. Now what would happen if I keep another prism near this? That means if I will keep another prism in this way, so these all different color light rays coming and striking, then it will convert it into white light. Again white. This is known as recombination of light. 7 different colors after striking again forming the white light. That is recombination of light. Okay. So this is the reason, that is the formation of rainbow takes place. So rainbow is formed. There are 2 conditions. One is when you want to see the rainbow,
sun must be behind the back. If you are looking, the rainbow is this side, sun will be on that side. And second, rainbow can be observed during rain, right? Or sometimes when we look at the fountain, water is falling down and you can see a rainbow, right? Because what air droplets, जो raindrops होती हैं, they are acting as the prism, small prisms. So all the colors passing through different prisms, then they form the rainbow. Okay. Now the next topic is atmospheric refraction. Very important. बहुत ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है क्योंकि इजीली स्कोर कर सकते हैं हम इसमें से, क्योंकि टॉपिक्स आर वेरी इजी. 3-4 टॉपिक्स आ गए जो आपको ऐसे याद हो जाएंगे. ओके. सो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के बारे में बच्चे वी हैव स्टडीड इन चैप्टर नंबर 10, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन. तो रिफ्लेक्शन क्या होती है? रिफ्लेक्शन एक धोखा है. धोखा मीन्स when you will keep something in water like a coin or pencil, and if you want to pick it up from the position which can be visualized from the outside, when you will try to touch it, you will not be able to touch at that place. Why? Because of reflection. क्योंकि रिफ्लेक्शन पोजीशंस को थोड़ा बहुत चेंज कर देती है, राइट? इसका हमने रीजन भी किया था कि डेंसिटी होती है ऑप्टिकल डेंसर रेयर मीडियम है, रे ऑफ लाइट डेंसर टू रेयर जाती है, रेयर टू डेंसर जाए. ओके. सो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन क्या है? अब अगर मैं हमारे एटमॉस्फेयर की बात करूं तो एटमॉस्फेयर की क्या है, जो डेंसिटी ऑफ एयर है वो यूनिफॉर्म नहीं है. यूनिफॉर्म नहीं है तो क्यों नहीं है? तो जो डेंसिटी ऑफ एयर है डिफरेंट हाइट्स पे, ग्राउंड से जो जा रहे हैं ऊपर की तरफ, तो वो डिफरेंट है. जो सरफेस है अर्थ सरफेस का, यहाँ पे जो डेंसिटी होगी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द अपर पोर्शन, राइट? जैसे जैसे ये मेरी अर्थ है यहाँ पे, तो अगर जैसे जैसे मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा डेंसिटी डिक्रीजेस. अर्थ के सरफेस पे बिल्कुल पास में डेंसिटी विल बी मैक्सिमम. तो हमें ये भी पता है कि जब डेंसिटी मैक्सिमम मीडियम होती है तो दैट मींस डेंसर और रेयर मीडियम बनते हैं. तो व्हाट आई कैन से कि अगर मैं नीचे से ऊपर की तरफ जाऊंगा तो डेंसर, रेयर, देन रेयर, देन रेयर, रेयर, रेयर मींस अगर मैं नीचे की तरफ आऊंगा तो डेंसर मीडियम की जो डेंसिटी है वो बढ़ती जाएगी, ऊपर की तरफ जाऊंगा तो डेंसिटी कम होती जाएगी. इस वजह से यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन हो जाती है, राइट? क्योंकि ये रिफ्लेक्शन एटमॉस्फेयर के अंदर है तो उस वजह से इसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, राइट? सो व्हाट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन? So refraction caused due to the atmosphere due to change in the optical density of the different layer, that is known as atmospheric reflection. बहुत easy है. Definition नेम के अंदर ही definition है atmospheric reflection. अब इसके कुछ effects हैं. क्या क्या effects हैं? सबसे पहले है twinkling of stars. Twinkling of stars. हमने सुना है कि जो एक पोएम थी, हम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स हाउ आई वंडर व्हाट यू आर. सो बट नाउ इन क्लास 10 शेखर सर इज टेलिंग यू दैट ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स, बट स्टार्स डू नॉट ट्विंकल एट ऑल. व्हाई? बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन. एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन टोल्ड अस दैट स्टार्स डू नॉट ट्विंकल, नहीं चमकते सितारे, राइट? क्यों नहीं होते? क्योंकि सिर्फ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन है जिस वजह से वो दिखते हैं. क्यों दिखते हैं? क्योंकि व्हेन द लाइट फ्रॉम द स्टार्स विल कम टुवर्ड्स अर्थ, इट हैज टू क्रॉस द डिफरेंट लेयर्स विद डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज. अब ऑप्टिकल डेंसिटी डिफरेंट होती है, तो जो उनकी लाइट है वो हमें फ्लक्चुएट नजर आती है कॉन्टिन्यूस वेरिएशन की वजह से. तो हमें क्या लगता है कि वो ट्विंकल कर रहे हैं, बट उनकी जो लाइट की डेंसिटी है वो कम ज्यादा होती है जिस वजह से हमें ट्विंकलिंग नजर आता है. बट एक्चुअली वो ट्विंकल नहीं करते. जो उनकी लाइट की जो इंटेंसिटी कम ज्यादा क्यों होती है? ड्यू टू ऑप्टिकल डेंसिटीज, राइट? ओके.
देन स्टार्स, जो स्टार्स है ये बड़ा ध्यान देने वाला है कि सीन हायर देन दे एक्चुअली आर, हायर देन एक्चुअली दे आर, ये जो एक्चुअल में होते हैं वो नहीं नजर आते। कैसे? अगर ये स्टार है, यहां पे अर्थ है, क्लियर? और उसमें क्या होगा, जब स्टार से रे निकलेगी, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि नीचे की तरफ क्या है, जो डेंसिटी है वो बढ़ती जाती है। तो हमें एक्चुअल पोजीशन से की बजाय स्टार यहां नजर आता है। ये एक्चुअल पोजीशन है, बट ये है जहां पे हमें विजुअलाइज होता है, दिखता है स्टार ड्यू टू ऑप्टिकल डेंसिटी, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिस इज अगेन वन मोर। देन द थर्ड वन, advanced and delayed. Advanced is first, advanced sunrise, delayed sunset. अब इसमें क्या होता है, इसमें भी वही चीज है कि अगर एडवांस और डिले क्यों होता है, क्योंकि सन की पोजीशन की वजह से। अगर ये अर्थ है हमारी, सन यहाँ पे है, अभी ऊपर नहीं आया, तो रेज जैसे उसकी जाती है तो वो देयर टू टेंसर, देयर टू टेंसर, देयर टू टेंसर, राइट? तो इस तरीके से कुछ निकलती है सबसे पहले, तो हमें जो एक्चुअल पोजीशन है वो यहां पे नजर आती है, राइट? दिस इज द एडवांस, राइट? और डिलेड में भी यही चीज है कि डिलेड में वो नीचे होता है तो उस वजह से, लेकिन जो उसकी पोजीशन है वो हमें फिर भी देर तक नजर आता रहता है। दैट इज डिलेड सनराइज एंड डिलेड सनसेट। तो डियर चिल्ड्रन, ये जो दो चीजें हैं, सबसे पहले डिस्पर्शन एंड एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के बिहाफ पे 3 क्वेश्चंस बनते हैं। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, स्टार्स सीन हायर देन एक्चुअली दे आर, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। इसके अलावा सन की ओवल शेप का भी पूछ सकते हैं आपसे कि नून आफ्टरनून में वो सर्कुलर होता है, इवनिंग टाइम में वो हमें थोड़ा ओवल शेप में क्यों नजर आता है? सेम रीजन, राइट? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। Okay. Now after this we are having one more topic, that is scattering of light. Scattering of light के अंदर क्या चीज है? Scattering of light, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है? हमारे पास बहुत से कुछ फिनोमिना हैं जो एक्सप्लेन किए जा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सो व्हेन लाइट फ्रॉम द सन ट्रेवल्स इन द एटमॉस्फेयर, जब वो एटमॉस्फेयर के अंदर आती है तो जो एटमॉस्फेयर के अंदर गैसेस हैं, जितनी भी गैसेस हैं, वो क्या करती है? उस लाइट को ऑब्जॉर्व करते हैं एंड देन दे री एमिट आफ्टर ऑब्जॉर्प्शन। सो जब वो री एमिट करती हैं, उस फिनोमिना को हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ light, right? So when light from the sun travels in the atmosphere, then the molecules of the atmosphere, gases in the atmosphere, absorb the light and re-emit in different directions. This is known as scattering of light, right? और जो atoms, molecules जो scatter करते हैं light को, उसको बोलते हैं scatters. इस टॉपिक के अंदर एक साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट है हमारे रेले, राइट? जिसको हम रेले स्कैटरिंग बोलते हैं। लॉर्ड रेले थे जिन्होंने हमें एक रिलेशन दिया था। उन्होंने बोला था कि जो इंटेंसिटी है लाइट की, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा पावर 4। ही गिव द रिलेशन कि अगर स्कैटर का साइज है, अगर स्मॉलर है देन द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, देन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ द लैम्डा, राइट? दिस इज द रेले स्कैटरिंग कंडीशन। तो इसी कंडीशन के बिहाफ पे हम कुछ फिनोमिना एक्सप्लेन कर सकते हैं। वन इज ब्लू कलर ऑफ स्काई।
ब्लू कलर ऑफ स्काई, कहते हैं स्काई जो हमें है ब्लू क्यों नजर आता है? तो हमें पता है कि जब भी सनलाइट एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करती है तो एटमॉस्फेयर के अंदर क्या है, गैसेस पार्टिकल्स हैं। जो पार्टिकल्स का साइज है एटमॉस्फेयर के अंदर, ध्यान दीजिएगा, जो साइज ऑफ स्कैटर जिसको बोलते हैं वो कम है वेवलेंथ से एज कंपेयर टू वेवलेंथ ऑफ द सनलाइट। तो इसी वजह से उस टाइम जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है वो इस कंडीशन को ओबे करती है। तो इस कंडीशन को जब वो ओबे करती है तो उस वजह से जो वेवलेंथ ऑफ रेड कलर है वो मैक्सिमम है, वायलेट और ब्लू कलर की मिनिमम है। तो जो रेड कलर है वो सबसे कम स्कैटर होता है और ब्लू कलर है वो मैक्सिमम स्कैटर होता है, जिस वजह से हमें वो पूरा ब्लू नजर आता है स्काई, राइट। एक व्हाइट कलर भी नजर आता है जो हम बोलते हैं कि क्लाउड्स हैं। इसका सिंपल सा रीजन है कि व्हाइट कलर क्लाउड्स का, जो व्हाइट कलर क्लाउड्स होते हैं उनकी जो हाइट है वो बहुत कम होती है, वेरी लेस इन हाइट। सो ड्यू टू दिस all the colors scatters equally, okay, and that's why it appears white. Then you might have observed red color signals. Red color signals होते हैं, क्यों होते हैं? डेंजर सिग्नल्स आर रेड इन कलर। इसी वजह से क्योंकि जो रेड कलर है वो सबसे कम स्कैटर होता है, जो वेवलेंथ है रेड कलर की वो मैक्सिमम है, इसी वजह से मैक्सिमम वेवलेंथ की वजह से जो रेड कलर है वो सबसे कम स्कैटर होगा, जिस वजह से हमें रेजेस नजर आते हैं, राइट। और अगर हमारे वहां एटमॉस्फेयर ना हो, इफ देयर इज नो एटमॉस्फेयर, राइट, इफ देयर इज नो एटमॉस्फेयर, सेम वे सनसेट और सनराइज के टाइम हमें सन जो है वो रेड कलर का नजर आता है। सेम रीजन है क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ है वो मैक्सिमम है और इस वजह से वो सबसे कम स्कैटर्ड होता है, लीस्ट स्कैटर्ड होता है, तो इस वजह से हमें वो रेड नजर आता है, राइट। सो सी माय डियर चिल्ड्रन, दिस इज अ वेरी स्मॉल चैप्टर। पहले ही स्मॉल था, अब सीबीएसई ने उससे भी स्मॉल कट शॉर्ट कर दिया थोड़ा, तो इजी से टॉपिक है। यही 3 टॉपिक है दिस पर्सन: एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सो आई होप माय वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, so keep on watching. I am there to help you out in physics. So we'll meet you in the next lecture with a new video for the preparation of the board exams. Thank you very much.